Hello everyone. Today I will teach about macroscope. First, before going to start this, first we understand the scale of life. Through scale of life, we are able to understand what is our limitation. Why we are switch over from naked eyes to macroscope development. Okay. Through this figure, we are clearly shows that our limitation is 2 millimeter. After adding development of light microscope, we are able to develop, we are able to see the image of 200 image enlarged by 2000x. That means any image we are able to enlarge by 2000 times. Okay. That means after earlier we are able to only see through naked eye, we are only see to organ only. But after development of organelles, we are able to see the, after the development of microscope, we are able to easily observe that organelles. Okay. After further development of more advanced of microscope like electron microscope, that means you want more than 10,000 lakh, not 10,000, more than 10 lakh times. It is, that means 10 lakh times the images are enlarged. Okay. So that means we are through electron microscope we are able to see the behavior and nature या structure of atoms also. Okay. तो आप में से किसी ने अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ नहीं देखा होगा, बट मेरा सैम पे काम था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, उसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, उसमें हम लोगों ने अपने प्लांट सैंपल की एनालिसिस की हुई है. तो आई विल टीच डिटेल अबाउट लेटर ऑन. ओके. तो बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, बिकॉज through development of microscope we are able to easily identify. Suppose that there are two objects, right? We are easy to identify them, no issue. Suppose that after that इसको भी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं. देयर आर टू ऑब्जेक्ट. इसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं. ना कुछ लोगों की प्रॉब्लम हो रही होगी और कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. यू आर एबल टू इजीली सेपरेट देम. ओके मैम. हाँ यस मैम, मुझे आई वांट ग्लास ऑफ वाटर. ओके. Here you are able to not able to separate as a two entity. That means there are overlapping is there something. फिर भी कह सकते हो कि there are two object है. What you say about it? Still you are able to say that there is something overlapping, but you are not able to say that there are two entity. You are not conformally. आप कंफर्म से कह सकते हो कि there are two entity? ना. आप suppose that हमने यहाँ पे now you can last one is still there are 2 points, but we are not able to separate them. It is what? It is our limitation of our eyes. But once I will go through microscope, we are able to separate them. Okay. So that's why for separating the two objects as a separate entity, microscope is play an important role. Okay. So one by one I will discuss with different types of microscope. Before discuss about types of microscope, firstly understand the who have developed the microscope, how microscopes are originated, and later on I will discuss the types of microscope. Now comes to the next slide. Go through one by one. What is the macroscopy? Macroscopy is the technical field of using microscope
to view object and area of object that cannot be seen with the naked eye. That's why microscope is important. Microscope, what is the full form of microscope? It is a Greek word. Macro means small and scope means to look. So that means through microscope we are able to see the small organisms या small entity या small object. Microscope is an instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked eye or unaided. Microscope is the science of investigating a small object using such an instrument is called microscopy. In first time microscope was developed by Hans in 1590. Hans Janssen and his son Zacharias Janssen. इसलिए दैट्स वाई कई बार आपके पास माइक्रोस्कोप जेंसन एंड जेंसन का भी अवेलेबल है बहुत पुरानी लेवल में. तो जेंसन इज द फर्स्ट पर्सन हु हैव डेवलप्ड द माइक्रोस्कोप. लेटर ऑन इन 1609 Galileo Galilei he developed the compound microscope. In later on 1620 Christian Huygens, another Dutchman, developed a two-lens ocular system that was chromatically corrected. Chromatically corrected means जो भी जो उसमें एरर आता है इमेज के फॉर्मेशन में उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था. और ऑलरेडी वी नो अबाउट लेटर ऑन वेल डेवलप्ड बाय द एंटोनी वॉन लुइनॉफ और लेटर ऑन रॉबर्ट हुक ने डेवलप किया था. मधुमक्खी का छत्ता देखा था. ऑलरेडी क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में. ओके, ये रहा आपका हिस्ट्री का पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप या वी कैन से दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब कई बार ये आता भी है अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, आगे चल के आपने से भी कोई प्रोफेसर है, टीचर बनेगा, तो आप किसी भी लैब में आप जाएंगे तो कुछ है दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है. एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो दोनों में डिफरेंस क्या है लाइट और कंपाउंड में, आप बता पाएंगे? सर लाइट और कंपाउंड दो था लाइट और कंपाउंड इक्वल में सिंगल लेंस यूज करेंगे कंपाउंड में मोर देन इक्वल लेंस. बिल्कुल. तो दोनों लाइट के दोनों लाइट माइक्रोस्कोप तो दोनों ही हैं, ठीक है. दोनों जगह भी सोर्स ऑफ लाइट जो है तो सोर्स ऑफ लाइट ही है, ठीक है ना. परंतु लाइट क्या कह रहे हैं और सिंगल लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट मीन्स कि सिंपल माइक्रोस्कोप वो होते हैं जहाँ पे सिंगल लेंस यूटिलाइज होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट मीन्स मोर देन 2 माइक्रोस्कोप्स आर यूटिलाइज. ओके, तो अभी हम कुछ पिक्चर दिखाएंगे भी अगर देखते हैं अवेलेबल होगा तो आई विल शो. जैसे यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे 2 है. वन इज द आईपीस ऑकुलर पार्ट, another is the objective part. Okay, so that means there are more than one lenses are used. That's why it is considered as compound microscope. Okay, अब इसको भी अगर देखा जाए तो it is not a compound, it is still a simple microscope. अब यहाँ पे क्या होगा, suppose that if there is more than 2 like that 10x, 40x or 100x, there are 3 types of objective lens are inbuilt there. That type of microscope is known as compound microscope. अभी last time already know about it. Type is force focus, fine focus, or stages plane, objective lens, mechanical. It is basic thing. Already you know very well about this. Or it is if I will discuss the compound microscope, it is a special. It is advanced than compound microscope. It is known as binocular microscope, which is not a binocular. It is unilocular. अब बाइनोकुलर ये है जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका दो आईपीस है, ठीक है, 2 ऑकुलर है और पहले वाले में क्या था सिंगल है. तो ये क्या है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप
और यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 देयर आर दैट मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर देयर 10x 40x 60x एंड 100x। अब इसके बारे में पार्ट्स के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। नाउ based on the source of light, microscopes are categorized into 3 categories. One is optical or light microscope, second is electron microscopy, and last one is scanning probe microscopy. Okay. In light microscopy, there are various types of light microscopy: bright field microscopy, dark field microscopy, confocal microscopy, phase contrast microscopy and fluorescence microscopy. आपके सिलेबस में क्या क्या है आपको पता है? आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेंशन है लाइट माइक्रोस्कोपी का टाइप में। वन इज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये 2 ही सिलेबस में है आपके। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज 2 टाइप्स, that means transmission electron microscopy and scanning electron microscopy, and advanced type is microscope is scanning probe microscopy, is atom force microscopy। इसको मैंने देखा भी नहीं है, कभी यूटिलाइज भी नहीं किया गया, तो अभी हमने सेम टाइम देखा है, यूटिलाइज भी किया है, ठीक है। अब आज जो टुडे आई विल कवर अबाउट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसकी क्या प्रिंसिपल है, क्या मैकेनिज्म है, उसको हम डिटेल करेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपी। वेरिएबल यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, जो देयर आर 4 टर्मिनोलॉजी वी आर बेसिक टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग। वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अनदर इज मैग्निफिकेशन, थर्ड इज रिजॉल्विंग पावर एंड फोर्थ वन इज लिमिट ऑफ resolution. What is the magnification? That means already it is name itself clear that magnification means enlarge any object which are enlarged more than actual। उसे कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया जाए परंतु एक्चुअल कंडीशन वैसी नहीं है, तो दैट मीन्स degree of enlargement, number of times the length, breadth and diameter of an object is multiplied. It depends on optical tube length, focal length of objective, magnifying power of eyepiece। ठीक है, तो 1 by 1 इसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे, अगर आप लोग थोड़ा सा पिक्चर अगर ऑब्जर्व करोगे, पहले जो माइक्रोस्कोप आते थे लाइट माइक्रोस्कोप, वो बड़े बड़े और पतले से लंबे से, ठीक है, तो ट्यूब लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, तो उनका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होता था, तो इमेज को बहुत ज़्यादा वो बड़ा नहीं कर पाते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, माइक्रोस्कोप की साइज छोटी होती गई। तो फिर टोटल मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ द, अगर देखा जाए तो किसी भी माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना होगा, इट्स डिपेंड ऑन आई पीस का क्या मैग्निफिकेशन पावर है और डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव का क्या कमेंट। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों से भी जब भी हम लोग वाइवा लेना होता है उनके सामने माइक्रोस्कोप रख देते हैं, और सपोज दैट अगर मैं बोलता हूं कि ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर 25x है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी इमेज को कितना गुना बड़ा कर सकता है? हाँ, पर सेकेंड क्वेश्चन अब आपके सामने ये आएगा, आपको क्वेश्चन अब ये आएगा, अगर बच्चा अगर पहले से जानता है तो पूछेगा सर क्या उसमें आकुलर लगा हुआ है या आई पीस लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात हम बोले हाँ लगा हुआ है, तो फिर बोलेगा उसका x कितना है, हम बोलेंगे 5x का है, तब वो बच्चा क्या करेगा 5 × 25 5 ×
25 कर देगा तो कितना हो जाएगा वो 125 टाइम्स गुना वो टाइम्स वो मैग्नीफाई करेगा। जनरली क्या हम लोग जब थे छोटे क्या BSc थे, जब हम लोग को भी आइडिया नहीं था तो हम लोग भी ऑब्जेक्टिव लेंस को ही देख के बताते जा रहे हैं ये अभी 10x का है तो दैट मीन 10 टाइम इंक्रीज करेगा। हम लोग आईपीएस के बारे में नहीं बताया जाता था हम लोगों को, पर हम लोग जैसे बड़े हुए या हम लोगों ने जब वर्कशॉप किया माइक्रोस्कोपी में तब पता हम लोग को भी चला कि व्हाट इज द एक्चुअल। ठीक है, ओके। So that's why I have written there, magnification is depend on eyepiece multiplied by magnification of the objective lens also. So now comes to the magnification resolving power. Already I have discussed that resolving power. What is the resolving power? That means any instrument which are able to, how much they are able to separate the two objectivity, two object. How much they are able to separate the two entity or two object into separate entity. Okay, poor resolution, it is through figure we can see that poor resolution, that means once increase the x, that means we get a better resolution. After increase the more x, then we get the best resolution. That means by increasing the number of x, we get the better resolution. It's all about depend on the instrument type. So then now comes to the resolution. How resolution, what factor resolution depend on? Resolution, it is the ability to reveal closely adjacent structured details as separate and distinct entity. Okay? Resolution, we can understand resolution through limit of resolution. The minimum distance between two visible bodies at which they can be separate entity, not in contact with each other. Okay? तो that's why जब वो contact में रहता है तो आप ये फिगर बड़ा करते जाते हो, तो जब वो contact means कि they are intermingled होने जा रहे हैं, blur हो रहा है, that means कि object जो भी है वो एक दूसरे से intermingled हो रहे हैं, we are not able to separate it. Okay? तो that's why हम कहते हैं कि बस इतना ही रह लो और इस इंस्ट्रूमेंट का इतना ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है कि किस इंस्ट्रूमेंट का या हमारे आइस का कितना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज डिपेंड ऑन 0.61 द फैक्टर इनटू W by NA। W क्या है? इट इज अ वेव लेंथ और NA क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर। दैट मींस limit of resolution depend on wavelength as well as numerical aperture. That means limit of resolution अगर wavelength ज्यादा होगी तो limit of resolution ज्यादा होगी। ठीक है, अगर numerical aperture ज्यादा होगा तो limit of resolution कम होगा। ठीक है, तो आपके केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए। कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो उसके केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा नहीं, आपको ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है हाउ मच दे आर एबल टू सेपरेट द टू एंटिटी। जितना कम होगा वो उतना ज्यादा वो डिस्टेंस पैदा किया रहेगा, उतना वो सेपरेट दो एंटिटी के बीच में सेपरेट किया रहेगा करेगा। जितना ज्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना फिगर ब्लर होगा। तो इसलिए इस पॉइंट में जानबूझ के एम्फसिस कर रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, उसको मैं क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं। अगर नॉट क्लियर हो तो दोबारा आप मुझसे पूछना। ठीक है, अभी मैं इसे अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं।
limit of resolution is depend on, अभी already I have discussed that limit of resolution depend on 0.61 lambda into lambda divided by numerical aperture. Numerical aperture is equivalent to n into sin alpha या sin theta. कई बुक में sin alpha लिखा रहता है, कई बुक में sin theta लिखा, both are same. अब यहाँ पे क्या है, 0.61 कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट किया, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, बस हमें इतना पता है, इट इज ए फैक्टर. ठीक है, ये क्रोमेटिक एवरेशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये फैक्टर ऐड किया जाता है. लैम्डा कैसे है, अब इसको मैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन लैम्डा, दैट मींस कि जितना ज्यादा वेवलेंथ कम होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा. कैसे कम होगा इसको हम लोग समझते हैं. ठीक है ना, इसको कोरिलेट करना है मुझको. दूसरा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n इनटू sin अल्फा. दैट मींस n क्या है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और sin अल्फा क्या है, एंगुलर अपर्चर है. तो दैट मींस व्हाट, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. हाउ? तेरा चौक ले आना है फिर से. हाँ, ये कुछ कनेक्टिविटी में इशू आ रही है. Suppose that it is a sample. यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है सबको. सपोज दैट इट इज ए सैंपल. अभी ये ब्लैक कर दिया हमने. सपोज दैट इट इज ए सैंपल. अब इस पे हम लोग विजिबल लाइट फॉल डाउन हो रही है. अब सपोज दैट लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ना, तो दैट मीन्स अगर लॉन्ग, दो तरह की वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ. अगर सपोज दैट छोटी वेवलेंथ है, अगर सपोज दैट दूसरी कंडीशन अब बननी है ऐसी लॉन्गर वेवलेंथ वाली,
उस ऑब्जेक्ट में फॉल डाउन हो रही है। अब क्या लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो वो ऑब्जेक्ट से ऊपर नीचे क्रॉस करके जा सकती है, परंतु स्मॉलर वेवलेंथ की होगी तो वो ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम लाइट पार्टिकल उसे वो टकराएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन लैम्डा, मींस उस पर अगर स्मॉलर वेवलेंथ की होगी तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, मतलब सॉरी कम होगा। दैट मीन्स दे आर एबल टू सेपरेट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ज्यादा क्लियर, हाँ, ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मोर क्लियरिटी आएगी, राइट। दैट मीन्स की क्लियरिटी विल बी मोर, ठीक है। अगर लॉन्गर वेवलेंथ का होगा तो क्लियरिटी जो उतनी नहीं आएगी। अब क्या है, लाइट में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसमें विजिबल लाइट यूज करते हैं। तो विजिबल लाइट में कौन कौन सी लाइट आती है? विबग्योर ना, तो दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। तो किसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है? रेड की। और सबसे कम किसकी है? वायलेट की। तो मोस्टली हम लोग जो भी यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर पुराना इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, अगर किसी के पास हो, किसी के लैब में, तो आप जाके ऑब्जर्व करना, जो भी पहले के थे, तो सन 2000 से पहले के जो भी इंस्ट्रूमेंट है अवेलेबल हैं, वो सब के सब किस लाइट में थे? येलो लाइट में थे, क्योंकि घरों में येलो लाइट से पहले बल्ब भी अच्छे आते थे ना, तो उसमें क्या येलो लाइट यूज होती थी। येलो लाइट में क्या है, विजिबिलिटी अच्छी रहती है। बट नाउ डेज अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट आप आ रहे हैं उसमें समवेयर ब्लू लाइट कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है। एलईडी बल्ब, एलईडी जो लगाई जा रही है उसमें अब ब्लू लाइट में, क्योंकि ब्लू का और ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ है कंपेयर टू येलो के, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई पीपल्स आर स्विच ओवर फ्रॉम येलो लाइट टू ब्लू लाइट। तब आपको पता चलेगा ना, आपको कोरिलेट कर लोगे ना। अब इसमें व्हाइट कलर, अब जनरली वो दिखता तो व्हाइट ही है, बट उसमें ब्लू है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे अपने लैब में, येलो लाइट था, ठीक है। अब नाउ है स्विच ओवर। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा कम वेवलेंथ होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी उतना कम होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। कोरिलेट कर पा रहे हो उसको? ठीक है। आप कहीं भी अपनी भाषा में इस चीज को लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए रिसर्चर हम लोग कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन श्योर पूछा जाता है हम लोगों से, अगर आपने माइक्रोस्कोपी वर्ड यूज कर लिया कि हमने दिस माइक्रोस्कोप यूज किया, तो कोई भी ले पर्सन होगा, तो कोई भी एक्सपर्ट होगा, और कम से कम भले वो फेज माइक्रो कन्फोकल या न यूज किया हो, परंतु बेसिक तो जानता ही होगा इतना। तो वो आपसे श्योर ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। तो बी रेडी विद दैट, ठीक है। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल अपर्चर मींस, न्यूमेरिकल अपर्चर मींस दैट डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल। एंगल क्या बोला है? एंगल मींस suppose that it is the objective दैट मीन्स, अब कोई भी लाइट आ रही है यहां से, यहां पे क्या है, लाइट सोर्स है, ये कंडेंसर लगा है, फिर ये कंडेंसर सैंपल के थ्रू पास होगा और फिर यहां से स्कैटर्ड होके, दैट मीन्स, हाँ दैट मीन्स ऐसे, तो दैट मीन्स
जो भी इसका जो भी ये जो एंगल बन रहा है ना, दैट एंगल इज नोन एज, हाँ, साइन, दैट एंगल इज नोन एज साइन थीटा। जो भी ये बन रहा है ये एंगल, तो दैट इज नोन एज, ऐसे जो बन रहा है, दैट इज नथिंग, इट इज ए थीटा या अल्फा। तो दैट एंगल इज, अगर जितना न्यूमेरिकल अपर्चर कम रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, उतना न्यूमेरिकल अपर्चर जितना कम होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा, दैट मीन्स, तो हमें एनी हाउ हमें क्या करना होगा, न्यूमेरिकल अपर्चर को कम करना होगा कि बढ़ाना होगा? नहीं, हमें रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना है तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा ना? नहीं, देखो पहली बात है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यूमेरिकल अपर्चर हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। तो कम करना है तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर उतना बढ़ाना होगा। तो दैट मीन्स, और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर को जो एंगल है ये उतना बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ जो फोकल लेंथ है उसको घटाना होगा, और साथ ही साथ तीसरा काम करना होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट जो है कम से कम हो, ठीक है ना। अगर क्या होगा, अगर एयर में है तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब हम लोग सैंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग थोड़ा सा सैंपल के पास ले जाके करते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हमको उतना फिगर क्लियर नहीं दिखाई देता है, पर जैसे जैसे उसका ट्यूब लेंथ कम करते जाते हैं, बिल्कुल सैंपल के नज़दीक ले आते हैं, हमें विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ने लगती है। और उस विजिबिलिटी को कम करने के लिए और क्या करते हैं, उस पर ग्लिसरीन डाल देते हैं, चाहे वाटर डाल देते हैं, जिससे क्या उसके बीच में गैपिंग और कम हो जाए। और तीसरा तरीका क्या है, और जब हाई मैग्निफिकेशन पे जब देखते हैं तो उसमें आयल ऐड कर देते हैं, दैट इज नोन एज इमर्सन आयल, जिसकी वजह से क्या होता है, सैंपल और तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही कम से कम हो जाए, और साथ ही साथ बेंडिंग ऑफ लाइट जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने के बजाय वो कंसाइज रहे, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज आर द फैक्टर ऑन विच मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल्स आर वर्किंग। Firstly, magnification. Second is resolving power at limit of resolution, and or limit of resolution depend on wavelength as well as numerical aperture. Already I have discussed that numerical aperture is nothing, is a ratio or diameter of lens to its focal length. It is क्या है, और न्यूमेरिकल अपर्चर किस पे डिपेंड करता है, डायमीटर क्या है, उसका जो भी लेंस बनता है कॉन्वेक्स, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका फोकल लेंथ मीन्स कहाँ पे कितनी दूरी पे ले जाके वो इमेज बना रहा है। जैसे जस्ट सी न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंस टू इट्स फोकल लेंथ, दैट मींस डायमीटर of the lens as well as focal length, so that ratio is known as numerical aperture. ठीक है, अब इस फिगर के थ्रू भी दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, लो अपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और यहाँ पे क्या इसका डायमीटर बढ़ा दिया गया है, तो फोकल लेंथ कम हो गया है। तो पहले देखो फोकल लेंथ इतना दूर था और डायमीटर बढ़ने के बाद उसका फोकल लेंथ कम हो गया, दैट मीन्स उसका न्यूमेरिकल अपर्चर क्या हुआ,
हाई हो गया, ठीक है, तो हाई हो गया तो उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो गया, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हुआ तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। और वर्किंग डिस्टेंस इज ऑल्सो मैटर, वर्किंग डिस्टेंस के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। तो वर्किंग डिस्टेंस मीन्स दैट मीन्स कोई भी हम सैंपल एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप से, बहुत ऊपर से ऑब्जर्व नहीं करते, उसको अपने सेट करते हैं ताकि उसका डिस्टेंस सैंपल का और ऑब्जेक्टिव लेंस के डिस्टेंस कम से कम रहे, ठीक है। आप इसमें भी ऑब्जर्व करोगे इसका एंगल जो है जब दूर था इसका एंगल कुछ और है, जब पास आ गया तो न्यूमेरिकल अपर्चर फैल गया है तो उसकी विजिबिलिटी क्या इमेज की क्लैरिटी और इंक्रीज हो जाती है। कंट्रास्ट ऑल्सो यू यूजिंग, आपने कई बार देखा होगा हम लोग कंट्रास्ट साइड में माइक्रोस्कोप लैब में यूज करते हैं तो हम लोग कंट्रास्ट टच करते रहते हैं ताकि फोटो की विजिबिलिटी अच्छी आए, ठीक है। इट इज द ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर आपने देखोगे तो प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन 4x, लो पावर का 10x, हाई पावर का 42 to 55 और आयर इमर्शन जब भी हम आयर यूज कर लेते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन कितने टाइम बढ़ जाता है, 90 to 100 टाइम बढ़ जाता है। दैट मीन्स वी आर यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी आर डिक्रीजिंग द, वैसे देखा जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, वाटर का 1.1 लाइक दैट है, और आयल का इमर्सन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.25 है। तो दैट मीन्स जिस सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उससे क्या है कि उतने इमेज की क्लैरिटी और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो लाइक दैट it is nothing. It is again I am repeating that through figure it is also showing that by increasing the instrument quality we are able to easily separate the two identities, okay. So it is the magnification and resolution. That means in first figure through we have any image we are able to magnify, and through resolution we are able to separate the two objects as a two entity, ठीक है। Already I have discussed that in principle of compound microscope there are ocular and objective lens. Resolution, the ability of the lens to distinguish two points. What is the refractive index? It measures light bending ability of a medium. Light may bend in air so much that it misses the small high magnification lens. Immersion are used to keep light from bending. जैसे suppose that एक एग्जाम्पल यहाँ पे तौर पे लिया गया, एयर यूज हुआ है, इसमें जो भी सोर्स से लाइट आ रही है ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, परंतु जैसे यहाँ पे इमर्सन आयर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट जो है हम नहीं हो रही है, तो जो भी जाहिर सी बात लाइट प्रॉपर आएगी तो आपको इमेज भी प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर जस्ट रीड आउट इट, the light gathering ability of a macroscope. न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, वो लाइट गैदरिंग एबिलिटी है मैक्रोस्कोप की। Higher value of numerical aperture allow increasingly oblique rays to enter the objective front lens, producing a more highly resolved image. जितना ज़्यादा numerical aperture होगा, उतना ज़्यादा light gathering होगी, उतनी ज़्यादा light gathering होगी, आपका limit of resolution उतना कम होगा, उतना जितना limit of resolution कम होगा, resolving power उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी बता रहा था refractive index, अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 है और आयर का कितना है 1.52 है और वाटर का 1.25 है, कहीं नोट कर लेना, जानते रहना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, वाटर का 1.25
और IL का कितना है 1.52। ठीक है, सर ऑयल इंप्रेशन में कितना है? 1.52। ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो भी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, लास्ट टाइम बताया येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं और रेड होते हैं, 3 कलर में लगे रहते हैं। तो अगर आप इसको कई बार अगर आप देख के रीड आउट, कई बार हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस देखते हैं कितने एक्स का है, अगर आप नहीं देखना चाहते हो on the basis of color you are also able to identify them। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है येलो पेन टेल अस इट इज ए 10x। येलो कितना है वो 10x है, और रेड के लिए क्या है 4x। रेड एंड ब्लू कितना है 40। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को फॉलो करोगे, अकॉर्डिंग टू बिग ब्योर जाओगे, सबसे पहले कौन आएगा ब्लू, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड। तो दैट मीन्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज करता जाता है ना बिग ब्योर में। वो रेड कर पा रहे बच्चे, इस बिग ब्योर में क्या होता है कि जैसे जैसे वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करता जाता है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ब्लू का जो है 40x है, उसके बाद येलो का 10x है, रेड का 4x है। तो कहीं भी आपको पीला दिख जाए, येलो दिख जाए, तो दैट मीन्स कि वो कितने x का है, वो 10x का है, और रेड है तो 4x सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ इस इंस्ट्रूमेंट पे जहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर लिखा रहता है, और उसके साथ ही साथ ये बगल में 10 के साथ साथ कुछ एक और डिजिट लिखी रहती है 0.25। 0.25 क्या है इसका न्यूमेरिकल अपर्चर है। ठीक है ना, जैसे 4x में न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होता है 10x के साथ न्यूमेरिकल अपर्चर 0.25, 40x में 0.65 और 100x में 1.25। दैट मीन्स न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स मोर न्यूमेरिकल अपर्चर, मोर कैप्चरिंग लाइट। हाँ बेटा, इसमें तो लिखा नहीं है, मुझे लग रहा है वाइड होगा, ठीक है, हाँ वाइड लिखा है, मैंने ध्यान दीजिए, वाइड इज फॉर 100x। मैं हो सकता है ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई विल आस्क दिस मैचिंग। कोई बात नहीं, अभी यही क्वेश्चन देना सर, कुछ भी हो सकता है। अभी तो देखो, अभी चाइना में लॉकडाउन लग गए हैं दोबारा। हाँ, कुछ शहरों में लग गया है वहाँ पे लॉकडाउन। ठीक है, ये रहा टोटल ऑन लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। इट इज द बेसिक अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। इट इज अ सिंपल एंड easy also. Give the heading fluorescence microscope. It will not take more than half an hour. Have patience. ठीक है, तो फर्स्ट में अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्लोरेसेंस।
अभी जो था लाइट माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स वेयर सोर्स ऑफ द लाइट इज व्हाट, सोर्स ऑफ द लाइट इज लाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स इन दिस मैटर इट इज ऑल्सो लाइट बट डिफरेंट लाइट, दैट इज द फ्लोरोसेंस। और वो फ्लोरोसेंस हाउ इट इज जनरेटेड we are going to discuss it. Suppose that any element which have a nucleus, a proton, any atoms electron are moving in a orbital, proton and neutrons are there. Once after getting the energy, that means known as excitation energy, that means what, electron become excited, and electron goes from lower orbital to higher orbital. Suppose that comes to this place. Once after getting a excited state, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब होगा ये अनस्टेबल हो जाएगा. Once the any molecules या any atom become unstable, they want to become stable. After during the stable period, they release energy. How? After getting electron, they come back to the original state. They release energy, and that energy is known as emission energy. Okay, so that means there are two types of energy. One is the excitation energy, and another is the emission energy. That emission energy is nothing, it is what? It is a fluorescence. That energy is known as fluorescence. So you see, whatever energy are released, that energies are used for seeing the image, or that energy is used in microscope. So that type of microscope is known as fluorescence microscope. ओके, तो इसके लिए क्या है कि जेबलोंस्की, which is one of the scientists who described the metal excitement and after metal excited they become after getting release the energy they become stable. How it is possible? And through we can see through this picture. Any metals, atoms which are excited, and after become excited they become unstable. They want to become stable. During the process of stability, they release energy. Once they come from excited state to again come back to ground state, they release energy. That process is known as fluorescence. That whatever emission energy is known as fluorescence energy. ठीक, तो इसके बारे में ही आपको यूटिलाइज करना है, इसको ही पढ़ना है इसके बारे में. अब क्या है यहाँ पे खास बात, क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जब एक्साइटेड एनर्जी जो हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जी इज हाई, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड ना. इसका मतलब एनर्जी हाई है.
हाई एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगा, लो होगी, दो क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग जानते ही हो एनर्जी और E इक्वल टू 1/2 एच न्यू, E इक्वल टू न्यू बराबर C बाई लैम्डा, तो दैट मीन C बाई लैम्डा, वैसे ठीक है। तो दैट मीन एनर्जी हाई है तो लैम्डा क्या होगा उसका, कम होगा। इसका मतलब दैट मीन्स एक्साइटेशन एनर्जी जब आफ्टर कम वेवलेंथ की जो भी लाइट है दे आर एबल टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, एक्साइट द एटम। आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइट, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि विजिबल लाइट में किस लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वायलेट वायलेट, ठीक है ना। तो दैट भी वायलेट है या इंडिगो या ब्लू लाइट, बेसिकली ब्लू लाइट है यूजिंग, ठीक है। इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में जो लाइट एक्साइट करने के लिए यूज की जाती है वो क्या, कौन सी लाइट यूज करती है, ब्लू लाइट। और आफ्टर excited state, once they come back to the ground state, they release energy। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगा, कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो वो किस कलर का होता है, वो ग्रीन कलर, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, प्योर ब्लू के बाद ही ग्रीन आ रहा है ना, तो आप इससे भी कोरिलेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, क्यों मैंने बताया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा। तो व्हाट इज द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, ओके। Fluorescence is an optical microscope that uses fluorescence and phosphorence. Fluorescence means whatever any molecules or atoms which are released after excitement come back to the ground state, they release energy is known as fluorescence. अगर वो बार बार एक्साइट हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो इस तरह के सबस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस सबस्टेंस। अगर वो ऐसा सबस्टेंस है जो एक बार एक्साइट हुआ और दोबारा एनर्जी रिलीज कर दिया और फिर दोबारा एक्साइट नहीं हो रहा है, तो उस तरह के सबस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोरेंस। तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस और माइक्रोस्कोप में मोर और लेस दोनों ही समवेयर यूटिलाइज होता है, परंतु फ्लोरोसेंस ज्यादा यूटिलाइजेशन है। Fluorescence microscope is an optical microscope that uses fluorescence and phosphorus instead or in addition to reflection and absorption. Fluorescence microscopy use fluorescence and phosphorus also. Fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light or other electromagnetic radiation, while other electromagnetic radiation का मतलब क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू रेडियो वेव तक है, ठीक है ना, उस सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है फ्लोरोसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट बाय अ सबस्टेंस दैट अब्सॉर्ब बाय लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाइल phosphorus is a specific type of photoluminescence related to fluorescence. Unlike fluorescence, a phosphorus material does not immediately re-emit the radiation it absorbs. That अभी इन्होंने बताया ना, phosphorus was substance after getting a light again वो re-emit नहीं कर रहा है, तो उस तरह के substance को क्या कर रहे हैं हम लोग, phosphorus. A fluorescence microscope was devised in the early part of the 20th century by August Kohler and Rechet and Heinrich Lehmann and other developers. Already I have discussed that. First time fluorescence terminology is used by Sir George Stokes, so that's why इस phenomena से related है phenomena absorption and emission, so that is known as Stokes shift, ठीक है। जैसे ये स्टोक्स शिफ्ट क्या चीज है, अभी चलो मैं बताऊंगा इसको।
he observed that mineral fluorospore, mineral है, fluorospore is the mineral, emitted red light when it was illuminated by ultraviolet excitation. That means जब ultraviolet से metal को excite किया गया तो वो क्या कौन सी लाइट इमिट किया? जब वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो रेड लाइट रिलीज किया. Stokes noted that fluorescence emission always occurred at longer wavelength than of the excitation light. अभी हमने बताया था ना, जो एक्साइटेशन लाइट की तुलना में जो इमिशन लाइट होती है, इमिशन लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्गर होती है. ठीक है कि नहीं? अभी समझ पा रहे हो तो कहीं इस पॉइंट पर नोट कर लो, क्योंकि ये बार बार काम आएगा. यहाँ पे नोट कर लो कि यहाँ पे ये क्या एक्साइटेशन एनर्जी है. एक्साइटेशन एनर्जी की क्या है? वेवलेंथ लो है. और ये इमिशन एनर्जी है, इसकी वेवलेंथ क्या है? हाई है. ये नोट कर लो, ये अभी आएगा, अभी मैं दोबारा बताऊंगा. इसको स्टोक शिफ्ट भी कह रहे हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ. दिस शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब कि दैट मीन्स शिफ्टिंग हो रही है. If we plot between intensity of light and wavelength, if we will get first graph I get absorption, and second is for emission, right? अब क्या है? ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स एक्साइटमेंट एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ. वो तो आपको इस फिगर से भी क्लियर हो रहा है कि इधर है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये. ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा और इधर क्या है? वेवलेंथ बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन पीरियड long excitement energy shorter wavelength. After emission period, in emission phase we get a longer wavelength and low intensity. ठीक है, तो shifting of दिख रहा ना, shifting of graph absorption to emission, shifting of graph is known as Stokes shift. Graph shifting of graph of absorption and emission is known as Stokes shift. तो इट इज प्रूव दैट, इन्होंने इस ग्राफ के थ्रू प्रूव किया कि इमिशन पीरियड में जब इमिशन करता है कोई एटम्स एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लो हो जाती है. ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा भी था हमने, द शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज, तो दैट मीन्स शिफ्टिंग हो रही है ना फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ. द शिफ्टिंग ऑफ, दूसरे शब्दों में लिख सकते हो उसे, शिफ्टिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज स्टोक्स शिफ्ट. नोट कर लिया था? ठीक. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेवलप द फ्लोरेसेंस एडवांस fluorescence microscopy. In 2014, some people get Nobel Prize also. Eric William Bohrer and Stephen Hahn developed super resolved fluorescence microscopy. They got Nobel Prize in
on 8 October 2014. Okay. What is the principle of macroscopy? As already we know that generally fluorescent microscope are used in case of animal cells. Most of the people, those who are working in animal field, generally used. हम लोग भी यूज करते हैं जैसे कोई कैल्शियम की सिग्नलिंग देखनी है हमको या कोई प्रोटीन्स का मूवमेंट देखना है हमको, तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो रूट सेल से लेके वो फ्लावर या स्टेम के टिप तक या सेल विद इन सेल वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको जब फ्लावरिंग आपने पढ़ा होगा उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले प्रोटीन्स मूव करता था, अगर फ्रॉम यंग लीफ टू द शूट एप्पल मेरिस्टेम पे जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पहले जब शुरुआती दौर में डेवलप हुआ 2014 से पहले बताया गया इट इज ए एफटी प्रोटीन है, और फिर बाद में साइंटिस्टों ने कंफर्म किया इट इज नॉट ए एफटी प्रोटीन, इट इज ए एफटी एमआरएनए मूव कर रहा है वो। तो इस तरह से फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के आधार पे हुई, ठीक है। मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ कलरलेस कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ऑब्वियस ही बात है जब सेल्स आर कलरलेस हैं तो जब दिखाई नहीं देगा तो हाउ वी विल एबल टू सी देम, इसका मतलब उनको कुछ कलर कोटिंग कर दी जाए जिसके वजह से क्या हो, हमें सेल की मोबिलिटी या सेल का एग्जैक्ट पिक्चर या इमेज हमें दिखाई दे पाए। तो बेसिकली इनका जैसे डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट या एक्टिन जो भी सेल डिवीजन जो होता है उसमें ऑब्जर्व करने, कैंसर सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। Fluorescent dye is also they are using the to color coating for using the color coating. They use fluorescent dyes, also known as fluorophores or fluorochromes, are molecules that absorb excitation light at a given wavelength. और जनरली कौन सी वेवलेंथ पे कोट करते हैं वो यूवी लाइट। आफ्टर अ शॉर्ट डिले इमिट लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ। ऑब्वियस ही बात है जो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एमिशन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मिनट ले रहा है, मिनट भी नहीं लग रहा है, सेकेंड भी नहीं लग रहा है, वो फेंटो सेकेंड लग रहा है। 10 को पावर -8 टू 10 को पावर 15 विद इन फेंटो सेकेंड्स में वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। The delay between absorption and emission is negligible, therefore the order of is what? Nanosecond. The emission light can be filtered from excitation light to reveal the location of fluorophores. That means जो excitation light यूज कर रहे हैं, जो फ्लोरोपोल्स जिससे टैग किया गया है सेल्स में या प्रोटीन्स को टैगिंग की गई है या कैल्शियम को, जैसे कि कैल्शियम का टैगिंग का मतलब क्या है कि ऑलरेडी यू नो दैट कि कैल्शियम बाइंड विद कॉलमेडुलिन प्रोटीन्स, तो वो कॉलमेडुलिन प्रोटीन्स कहाँ मूव कर रही है आफ्टर बाइंडिंग कैल्शियम, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैल्शियम सिग्नलिंग में। जैसे कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप हाउ इट इज अ लुक, इट इज जस्ट अ पिक्टोरियल डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। There are different components. One is start with excitation filter. This is suppose the first is light source, second is excitation source, then specimen, then come to objective, then dichoric mirror, then emission filter, then detector, and finally we are able to see the image. तो इसके बारे में ही सारा कुछ हमें व्हाट इज द लाइट सोर्स, व्हाट इज द एक्साइटेशन फिल्टर, व्हाट इज द डायकोरिक मिरर, व्हाट इज द इमिशन फिल्टर, इसके बारे में ही थोड़ा हम लोग को पढ़ना है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी यूजेस ए मच हायर इंटेंसिटी लाइट टू इल्यूमिनेट द सैंपल। इसमें जो भी इंटेंसिटी यूज की जाती है हायर इंटेंसिटी की यूज की जाती है। This light excites fluorescence species in the sample, which then emit light of lower wavelength. Obvious ही बात है।
The image produced is based on the second light source. That means जो ये इमेज अभी जो अभी आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हो या आप देख रहे थे, वो प्राइमरी सोर्स के आधार पे ही आप देख ले रहे थे, क्योंकि लाइट पास हो रही है, उसी प्राइमरी सोर्स से ही आप इमेज दिख रहा था। परंतु फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स में पहले वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स को एक्साइट कर रहा है, और जब वो इमिट करता है, जो एनर्जी जनरेट होती है उस इमिशन एनर्जी से दिखी जा रही है। ठीक है, that's why written is there second light source. The image produced is based on the second light source or the emission wavelength of the fluorescence species rather than from the light originally used to illuminate and excite the sample. Working क्या है इसकी? Light of the excitation wavelength is focused on the specimen through the objective lens. क्या कहना चाह रहा है? The light source enter send through excitation filter, send through specimen. ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जब वो रिटर्न बैक होगा ना, तब आएगा यहाँ से। फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय द स्पेसिमेन इज फोकस्ड ऑन द डिटेक्टर बाय द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। सिंस मोस्ट ऑफ द एक्साइटेशन लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन, ओनली रिफ्लेक्टेड एक्साइटेड लाइट रीचेज द ऑब्जेक्टिव टुगेदर विद एमिटेड लाइट। जो भी इस स्पेसिमेन से जो लाइट इमिट होती है, दैट आर कैप्चर्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दैट थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस दे आर सेंड टू द डिटेक्टर। अभी फिगर के थ्रू दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। चलो, अब क्या है, अब ये क्या क्या कंपोनेंट हैं इस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। टिपिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आर, फर्स्ट इज ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सैंपल है तो उसे हम लोग उसे डाई करना पड़ेगा। डाई बेसिकली डाई यूज करते हैं जिससे कि हम लोग उसको कलर कोटिंग कर पाए। तो उसको ये मॉलिक्यूल इस तरह के होते हैं जो फ्लोरेसेंस इमिट करें, ठीक है, दैट मीन्स इमिशन एनर्जी रिलीज करें। फ्लोरोफोर इज chemical compound name. Fluorophore is a fluorescent chemical compound that can re-emit light upon light excitation. Fluorophores typically contain several combined aromatic group or plain or cyclic molecule with several pi bonds. It is a characteristic of fluorophore. Many fluorescent stains have been designed for a range of biological molecules. Some of these are small molecules that are intrinsically fluorescent and bind a biological molecule of interest. One of the most famous has just written down is which are most commonly used for example for nucleic acid stain के लिए like DOPI and Huicost। ठीक है, दो जो फ्लोरोफोर बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है न्यूक्लिक एसिड के लिए स्टेनिंग के लिए, कि क्या यूज करते हैं, डॉपी और डॉपी एंड हुइकोस्ट, ठीक है। और फेलोआइडीन इट इज यूज्ड टू स्टेन एक्टिन फाइबर। एक्टिन फाइबर्स को एक्टिन फाइबर क्या होते हैं, जो आप एक्टिन फाइबर जब माइक्रोस्कोप मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हो, जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करते हैं, वो एक्टिन फाइबर्स होते हैं। उनको लेबलिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है। अक्सर आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर एक्टिन फाइबर, लेबलिंग द एक्टिन फाइबर के लिए। तो क्या है, फेलोराइडिन, और न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या है, डॉपी है, हुइकोस्ट। हाँ आया हुआ, तो मैंने जानबूझ के नोट किया ही है, नहीं तो n नंबर ऑफ कंपाउंड है जो अकॉर्डिंग टू नीड साइंटिस्ट आर या रिसर्चर्स आर यूजेस। ठीक है, देख भी रहा होगा इसका एक्साइटेशन का वेवलेंथ क्या है और इमिशन का वेवलेंथ क्या है। एक्साइटेशन का वेवलेंथ लाइक दैट एलेक्सा 400-405 है, इसका 401 नैनोमीटर है, और इमिशन क्या है 421। दैट मीन्स
उसकी एक्साइटेशन की एनर्जी जो कम है, एक्साइटेशन का वेवलेंथ कम है और इमिशन का ज़्यादा है। इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, इट इज लाइक द लिस्ट ऑफ द फ्लोरेसेंट डाई which are using in fluorescent microscopy. Again I am showing again this picture, light source. First light source enter through excitation filter. Excitation filter वैसा filter है एक particular wavelength को ही allow करता है according to biological sample। ठीक है, जिस तरह का biological sample होगा, जिस तरह की कोटिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो उस लाइट को आने देगा। सपोज दैट ऐसा सैंपल है जो ब्लू लाइट आने दे रहा है क्योंकि वो ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम है। They enter after excitement, it is hit the sample, and then after it become excited and release the emission energy. That emission energy go through object here and that touches or that hit the dichoric mirror। अब यहाँ पर डाइकोरिक मिरर का दो काम है यहाँ पे, एक तो इसको डायरेक्शन देना, सैंपल की तरफ भेजना, और दूसरा काम है इसका एक पर्टिकुलर हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को इसको इमिशन फिल्टर पर पहुंचाना। और इमिशन फिल्टर क्या करता है, उसको which are sent to the detector। अब देखा जाए तो इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी के इंटरनल एनाटॉमी, इट इज अ लाइव है, पूरा ये मशीन गन लग रहा है। ये तो सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट काम करोगे इट इज बहुत सो मच इजी। कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बस क्लिक क्लिक क्लिक। उसी तरह अभी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाऊंगा तो लगेगा कि आपको कोई कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। ये भी है सर? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, तो ये आपको IIT में मिल जाएगा। तो ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये ऐसा है, रोटेशन किया हुआ है, वैसे इसका अरेंजमेंट ही ऐसा है। इसमें इमिशन पैटर्न, इमिशन से नहीं स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक्साइटेशन फिल्टर है यहाँ से, एक्साइटेशन फिल्टर के बाद फिर कहाँ पे जा रहा है, डाइक्रोमेटिक फिल्टर, डाइक्रोमेटिक मिरर के पास जा रहा है। अब देखना, कंफ्यूज मत होना, डाइक्रोमेटिक कहीं मिरर लिखा रहता है और कहीं पे डाइकोरिक लिखा रहता है, बोथ आर सेम। Dichoric means dichromatic है, that means there are two function, one is excitation energy को ले रहा है और emission energy को transmit कर रहा है, ठीक है। और emission filter that means barrier है, वो particular wavelength को ही allow कर रहा है, ठीक है। और rest इसके जरूरी थोड़ी है कि इसके अलावा और भी तो wavelength की लाइट आएंगी, तो वो only एक particular wavelength को ही allow करता है। That's why emission filter का नाम barrier भी कहते हैं। अभी हो सकता है उतना कनेक्ट ना कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी मोटा मोटा अभी आपके सामने फिर से पिक्चर रिपीट होगी। अब पार्ट ऑफ फ्लोरेसेंस में वन बाय वन आई एम अगेन रिपीटिंग टू यू। इट इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट सोर्स क्या क्या होंगे इसके? मोस्ट ऑफ द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूज मर्करी लाइट, मर्करी लाइट लैम्प, पी छूट गया है, as a primary source of light. This lamp emits white light, ठीक है। फ्लोरेसेंट डाई दूसरा है पार्ट है, फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं इसमें, that is known as fluorochromes. Fluorescent dyes are a type of chemical compound that emit light rays when they excited with UV and blue rays. It consists of aromatic group या plain या cyclic molecule which contains several pi bonds. थर्ड पार्ट है इसका एक्साइटेशन फिल्टर। हम इसको वन बाय वन ही बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइट सोर्स हो गया, लाइट सोर्स के बाद क्या हो गया, एक्साइटेशन फिल्टर के बारे में देख लिया। एक्साइटेशन फिल्टर दैट मींस अब एक्साइटेशन फिल्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
इट इज अ टाइप ऑफ बैंड पॉज। इसके बारे में बताने जा रहे हैं, एक्साइटेशन के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ बैंड पॉज फिल्टर विच पॉसेस द वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय द फ्लोरोपोर। It minimizes the excitation of another fluorescence, of other source of fluorescence. That means वो एक particular type की wavelength को ही they are allowed. Or block the excitation light in the fluorescence emission band. And next है emission filter. That means emission filter कहाँ है? यहाँ पे It is also type of band pass filter. It only passes only those wavelengths which are emitted from fluorophore. It blocks all unwanted wavelength outside this band. ठीक है? They allow only excitation light. Dichroic mirror क्या है? It is a type of accurate color filter. It only passes small range of color and reflect other colors. डाइकोरिक क्या करता है? डाइकोरिक इट इज अलाउ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के कलर है, ब्लू जो है लोअर वेवलेंथ है और ग्रीन हायर वेवलेंथ की लाइट। और क्योंकि जो फ्लोरोसेंस है जैसे क्या फॉर्म है GFP यूज किया जाता है डाइज। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ उसको फुल फॉर्म। अभी इसके आपका अब तो मैकेनिज्म थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब उसी हिसाब पहले सोर्स हुआ, सोर्स एक्साइटेशन फिल्टर, डाइकोरिक के बाद सैंपल से हिट किया, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में ऊपर हुआ, डाइकोरिक को अगेन, फिर डाइकोरिक से इनिशियल फिल्टर, देन डिटेक्टर। अब इसी सारी चीजों को हमने वर्किंग स्टेप्स के तौर पे हमने वो लिख रखी हुई है। क्या बेटा? हाँ, हमने जो बोल रहा हूँ उसको मैंने जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, क्या हो जाना है आपको? ठीक है, बस 5 मिनट में सैंपल प्रिपरेशन था। जो किस अब यहाँ पे डाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे कौन सा डाइज किस पर्पस के लिए यूज होती है वो हम देखेंगे। बायोलॉजिकल फ्लोरोसेंस स्टेन जैसे टॉपी है, ऑगस्ट है, अनदर स्टेन आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग न्यूक्लिक एसिड। पैलाडॉन इज यूज्ड टू स्टेन एक्टिन फाइबर्स। और इम्यूनो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज आल्सो स्टडी बाय फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आल्सो। दिस इज कई बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में कि एंटीजन एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन के लिए आउट ऑफ दिस में से कौन सा माइक्रोस्कोप आप यूज करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। जैसे कि एलिजा और फिश टेक्निक आपने सुना होगा, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी सब में। ठीक है, दिस मेथड यूजेस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू देयर antigen to target fluorescent dye to specific biomolecule target within a cell, therefore allow visualization of the distribution of the target molecule through the sample. Third is fluorescent proteins also using। अभी ये जो थे स्टेन थे, डाई थे, और यहाँ पे प्रोटीन्स आल्सो यूज्ड एज डाई। कौन सी प्रोटीन है? वो है ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स है, और येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स और रेड फ्लोरोसेंट डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल सैंपल। ठीक है, और जैसे मैंने जानबूझ के मैं अगेन बार इसके बारे में इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लेना आप। डॉपी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ 4,6 डाई एमिडाइनो 2-फेनिल नोडोल इज अ फ्लोरोसेंस स्टेन दैट पॉइंट स्ट्रांगली टू। अब क्या और मैं स्पेसिफिक हो रहा हूं मैं, ये न्यूक्लिक एसिड में किस नाइट्रोजन बेस को बाइंड करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टेनली आई विल आस्क यू। ठीक है ना, हो सकता है मैं डाई पे सेपरेट नोट शॉर्ट नोट दे दूंगा। तो स्पेशली ए और टी रीजन को डीएनए में बाइंड करता है, ए और टी रीजन को। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लिक एसिड में अगर ए और टी रीजन को बाइंड कर रहा है, इसका मतलब कि आरएनए को नहीं कर रहा होगा,
ऑब्वियस सी बात है। तो रेडी विद दैट कि आर नॉट, इट इज नॉट फॉर आरएनए, स्पेसिफिक फॉर डीएनए। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसका? टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड एंड लाइव बायोलॉजिकल सैंपल। Fluorescence microscopy is a common tool for today's life science research because it allows the use of multicolor staining, labeling of structure within the cell. क्योंकि most of the cells, अगर आपने देखा होगा कभी इमेज या गूगल पे कहीं भी आपने देखा होगा, एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, प्लांट सेल तो फिर भी ठीक है, ग्रीनिश है, परंतु एनिमल सेल जो है वो कलरलेस ही है। तो दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू कलर देम। Advantage, what is the advantage of fluorescence microscopy? Fluorescence microscopy is the most popular method for studying the dynamic behavior exhibited in live cell imaging. One of the important fact, आप जितने भी माइक्रोस्कोप देखा आपने वो लाइव स्ट्रीमिंग किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी जिंदा अगर आपको लाइव देखना है तो आपको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप मतलब लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखना है। अगर मैंने आपको याद हो, अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा, उसमें मैंने एक माइटोसिस और मियोसिस का एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें हाउ टू डिवाइड सिंगल सेल, तो उसमें बड़ा अच्छा वीडियो है, उसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज है। ठीक है। और फिर ये तो हो गया सेल्स की लाइफ, और दूसरा प्रोटीन का बिहेवियर या प्रोटीन का मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स लाइक दैट। और साथ ही साथ हाउ मच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस या एनी डिजीज आल्सो, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर मोर एक्यूमुलेटेड, तो उसको भी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। जैसे कि कोरोना वायरसेस और ये सब थे, तो वो कोरोना वायरस कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ का इंटर कर रहा है, लंग्स के किस हिस्से में जा रहा है, तो वो सब भी दे आर एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। लिमिटेशन बस लास्ट है, लिमिटेशन लास्ट स्लाइड है। फ्लोरोपोज बार बार आप किसी भी सेल्स को लाइट से हिट कर रहे हैं हाई एनर्जी से, दे इमेज बिकम ब्लर या दे बिकम फोटो, दैट फिनोमेना इज नोन एज फोटो ब्लीचिंग। तो होता क्या, अगर बार बार सैंपल पे आप हिट करते रहेंगे तो फोटो बिकम या इमेज बिकम ब्लर या फोटो ब्लीच, दैट्स व्हाई रिटन देयर। Fluorophores lose their ability to fluoresce as they are eliminated in a process called photobleaching. Photobleaching occurs as the fluorescent molecules accumulate chemical damage from the electron excited during fluorescence. बार बार डैमेज होने भी, आप जो इमेज, मैं उसका पिक्चर अभी रखा नहीं हूँ मैं, नहीं तो मैं शो करता कि हाउ इमेज आर ब्लर। इन नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। Cells are susceptible to phytotoxicity, particularly with short wavelength of light. Further, fluorescent molecules have tendency to generate reactive chemical species when under illumination, which enhances the phototoxin. जाहिर सी बात है उसमें रिएक्टिव केमिकल कंपाउंड जनरेट होने लगते हैं बार बार, क्योंकि आपको बताया लाइट स्ट्रेस की वजह से जो भी हाइड्रोक्सी रेडिकल या सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होने लगता है। क्योंकि लाइव स्टडी कर रहे हैं ना, तो जब लाइव स्टडी कर रहे हैं तो उसमें वाटर तो होगा ही होगा, तो लाइट के बाद उसमें हाइड्रोक्सी रेडिकल सुपर ऑक्साइड आयन बनने लगेंगे, दे बिकम ऑक्सीडेटिव फॉर सेल्स। ठीक है। अब मैंने एक वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जाने देता हूँ। Fluorescence microscopy is a special type of microscopy in which the microscope uses a laser as the light source. A researcher will require examination who will introduce you to fluorescence microscopy. Fluorescence microscopy is a special type of
which the microscope uses a laser as the light source. A researcher will require the use of a fluorescent microscope to visualize autofluorescence, analyze the expression, modification, or localization of proteins using fluorescent antibodies by a technique called immunofluorescence. In a fluorescence microscope, the light source travels in a different trajectory than in a basic light microscope that we illustrated in the microscopy experimental technique animation. It Instead tan of the laser light being transmitted through the sample, as in a simple bright field-based light microscope, the fluorescence microscope uses incident or reflected light. From the laser light source, the excitation laser beam travels through the filter cube, which is used to provide the appropriate wavelength of light to excite the fluorescent molecules or fluorophores used in the sample, and through the objective to focus the laser light on the sample. The light emitted from the sample is then reflected back through the objective and the filter cube, which filters the emitted light to the camera or eyepiece where the researcher can view the fluorescent signal. One advantage to fluorescence microscopy is that it can be used to detect and visualize multiple fluorescent molecules by simply adjusting the excitation and emission filters to detect the relevant fluorophores in the sample. Fluorescent microscopy also has many useful applications in the laboratory setting. Fluorescent dyes stains are used to detect cellular structures. One example of a commonly used fluorescent dye is stadin, which binds to DNA, and the second example is colloidin, which binds to actin. Expression modification and localization of specific proteins can also be visualized using immunofluorescence, or IF. Like immunohistochemistry, IF uses multiple steps to detect specific proteins using antibodies in the sample. In IF, one of the antibody labeling steps utilizes fluorescent intact antibodies that are detectable upon excitation using the appropriate wavelength of light. ठीक है, मैं इसका दोबारा शेयर कर दूंगा वीडियो लिंक आपसे, तो आप इसे देख लेना एक बार आप लोग।